السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدعتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدعتیوں کو جنم دینے والے ہیں، بدعتوں کو ایجاد کرنے والے ہیں، بدعتیں پھیلانے والے ہیں۔ ایسا فتویٰ دارالعلوم بنوریا کراچی سے آیا، جو دیوبندیوں کا ایک بڑا مدرسہ ہے، جو دیوبندیوں کا ایک مرکز ہے ہمارے پڑوسی ملک میں۔ کیا اعلیٰ حضرت بدعتی ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ یا اعلیٰ حضرت سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں؟ اسی فتوے پر آج تحقیق کی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت بدعتی ہیں یا نہیں ہیں۔ لہٰذا ویڈیو پورا دیکھ لیں، بہت اہم ویڈیو ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو وہ عبارت پیش کرتا ہوں جو دارالعلوم بنوریا سے آئی ہے، جو گوگل پہ آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور اسکرین پہ ہم اس کا اسکین لگا دیں گے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سنیں، میں دیکھ کر کے عبارت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ دارالافتاء والقضاۃ الجامعۃ البنوریا۔ کسی نے پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا حکم ہے، کافر ہیں یا بدعتی ہیں یا گناہ گار ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ احمد رضا خاں بریلوی مبتدع بلکہ رئیس المبتدعین، اور آج تک جتنے بدعات و رسومات مروج ہیں وہ اس سب کے معید رہے ہیں، مگر بدعتی ہونے کے باوجود علماء دیوبند نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ آپ کہہ رہے ہیں مبتدع مانے بدعتی، اور رئیس المبتدعین بدعتیوں کے سردار، مروج یعنی جتنی بھی بدعتیں اور رسمیں مروج ہیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے معید، اشارہ کرنے والے، مدد کرنے والے، اور ان کی بدعتیں کرنے پر خاموش رہنے والے، یہ کون ہے؟ احمد رضا فاضل بریلوی۔ یعنی اعلیٰ حضرت کو یہ لکھ رہے ہیں کہ جتنی بدعتیں ہو رہی ہیں، جتنی بدعتیں پھیل رہی ہیں، جتنی رسومات پھیل رہی ہیں، ان سب کے اعلیٰ حضرت ٹھیکیدار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اسی پہ اب تحقیق کرتے ہیں کہ انہوں نے جو لکھا ہے یہ آج کل کے دیوبندی ہیں، کل کے دیوبندیوں نے اعلیٰ حضرت کو کیا لکھا تھا، اور پھر بتائیں گے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو میں آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلی عبارت مولانا اشرف علی تھانوی کی۔ یہ دیوبندی لوگوں کے سب سے بڑے غالباً مولانا ہیں، ان کا بغیر نام لیے یہ لوگ دن نہیں گزارتے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اب سوال آپ اپنے ذہن میں رکھنا، جو اعلیٰ حضرت کو لکھا گیا کہ بدعتی ہیں اور بدعتیوں کے معید ہیں، رئیس المبتدعین ہیں، یعنی بدعتیں پھیلانے والوں کے سردار ہیں، یہ عبارت ذہن میں رکھنا، یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے۔ اب دوسرے دیوبندیوں کے سردار کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، وہ آپ ایک بار دیکھ لیں، اور ہم اسکین بھی لگا دیں گے اور آپ یہاں بھی سن لیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ حوالہ ہے اسوہ اکابر صفحہ نمبر 18، اور اس کو دوسری کتاب میں جو نقل کیا ہے اس کتاب کا نام ہے امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں صفحہ نمبر 108۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر وہ بدعتی ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھے گا کوئی؟ بدعتی کے پیچھے نماز کیسے ہوگی بھائی؟ جب مولانا اشرف علی تھانوی نماز پڑھنے کو تیار ہیں، ان کو بیچاروں کو موقع ہی میسر نہیں ہوا کبھی، تو وہ نماز پڑھنے کو تیار ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعتی تھے، تو ان کے گھر میں ہی اتفاق نہیں ہے۔ یہ خود بڑے مولانا کی اپنے بات نہیں مانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے جو لکھا ہے ان کو وہی لکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ بدعتی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو موقع ملتا تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ یہ بات آپ نے سن لی، اب آگے دوسری عبارت دیکھیں۔ حضرت والا اشرف علی تھانوی مولانا احمد رضا صاحب کو برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک حمایت کرتے تھے، اور شد و مت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ ان مولانا احمد رضا کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہو، اور ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ سمجھتے ہوں۔ حوالہ ہے اشرف السوانح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔
समझ गया ना। इसका तो मैं आपको खुलासा नहीं बताऊंगा, इसका तो खुलासा आप कुछ समझ चुके होंगे। और सुने तीसरी इबारत, मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि मेरे दिल में मौलाना अहमद रजा साहब का बेहद एहतराम है। वो हमें काफिर कहता है लेकिन इश्क रसूल की बिना पर कहता है, किसी और गरज से तो नहीं कहता। इसका हवाला है इमाम अहमद रजा अरबाब इल्म दानिश की नज़र में सफ़ा 108। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि मौलाना अशरफ अली थानवी क्या कहते हैं। लिखते हैं कि अहमद रजा का मेरे दिल में बेहद एहतराम था। तो दारुल बनौरिया वालों से पूछा जाए कि आप बताइए कि मौलाना अशरफ अली के थानवी साहब के दिल में तो आला हजरत से बहुत एहतराम था, और आप कह रहे हैं कि वो बिदाती हैं, तो क्या बिदाती के दिल में अशरफ अली थानवी का एहतराम था? क्या बिदाती के बारे में एहतराम क्यों किया उन्होंने? या तो फिर आप गलत हो सकते हैं या उनको आप अपने बड़े मौलाना साहब को गलत ठहराइए। वो खुद कह रहे हैं कि मेरे दिल में बहुत एहतराम था, और आप कह रहे हैं कि वो बिदाती था और रईसुल मुब्तदईन है। और आप देखें, वो हमें काफिर कहता है, इश्क रसूल की बिना पर कहता है। यानी आला हजरत के अंदर बहुत ज्यादा इश्क रसूल है और हमारे अंदर इश्क रसूल नहीं है। इस वजह से वो उसका इश्क इस चीज को गवारा नहीं करता कि हम कोई भी ऐसा वैसा काम करें। और मौलाना कौसर नियाजी ने क्या लिखा है मालूम है? वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाहिजा करें। इन मौलाना अहमद रजा साहब की इम्तियाजी शान उनका इश्क रसूल है, जिस पर वो सरतापा डूबे हुए हैं। चुनांचे उनका नातिया कलाम भी सोजो गुदाज की कैफियतों का आईनादार है और मजहबी तकरीबात में बड़े ज़ौक़ शौक और एहतराम से पढ़ा जाता है। यानी पढ़ी वही चीजें जाएंगी मजलिसों में जो काबिल कबूल होंगी, जो बेहतर होंगी, जिसमें कोई बेहतरी ना हो और जिसमें कोई बिदातें जाहिर हो जाए, उनको नहीं पढ़ा जाता है। जिसमें खूबियां जाहिर होंगी, बेहतरीन होंगी, अच्छी चीज होंगी, वही तो पढ़ी जाएंगी। हवाला है अंदाज़े बयान सफ़ा नंबर 89 बहवाला आशिक रसूल सफ़ा 9, और तीसरा हवाला इमाम अहमद रजा इल्म दानिश की नज़र में सफ़ा 111। और सुनो जो सबसे अहम इबारत है, मौलाना कौसर नियाजी साहब क्या फरमाते हैं। मौलाना कौसर नियाजी ये कौन है? मौलाना कौसर नियाजी देवबंदी साबिक वजीर मजहबी उमूर हुकूमत पाकिस्तान है। फरमाते हैं बरेली में एक शख्स पैदा हुआ जो नात गोई का इमाम था, और इमाम अहमद रजा जिसका नाम था। उनसे मुमकिन है बाज़ पहलुओं में लोगों को इख्तिलाफ हो, और है इख्तिलाफ। कुछ बातें वो हैं जो लोगों में इख्तिलाफ हो सकता है, अकीदों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नातों में कूट कूट कर भरा है। जो जिसकी नातों में इश्क रसूल भरा हो उसको आप बिदाती कह रहे हैं, इतनी गलत बात है। हवाला है मगाने नात सफ़ा नंबर 29 कराची 1975 ईस्वी, और दूसरा हवाला इमाम अहमद रजा अरबाब दानिश की नज़र में सफ़ा 110। मैं ज़्यादा इबारतें पेश नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अब मैं आपको खुलासे के तौर पे बताऊंगा कि उन्होंने लिखा है आला हजरत को बिदाती, और इन्होंने आला हजरत की तारीफें की, आला हजरत को आशिक रसूल लिखा है। फैसला आप करेंगे कि दोनों में बेहतर इबारत किसकी है। तो नाजरीन अब मुख्तसर सी नज़र डालते हैं बिदात की कितनी किस्में हैं। मैं देख करके पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी अगर समझाऊंगा उसमें तफसील बताऊंगा तो टाइम लगेगा, लिहाजा आप तवज्जो से सुनना। बिदअत किसे कहते हैं? बिदअत की तारीफ है इस्लाह शरा में बिदअत ऐसी चीज़ के ईजाद करने को कहते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में ना हो। समझ गए? ख्वाह वो चीज़ दीनी हो या दुनियावी। इसका हवाला अशियातुल लमात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 125। और बिदअत की 3 किस्में हैं, बिदअत हसना, बिदअत सय्यिआ, बिदअत मुबाहा। अब फिर इनकी किस्मों में से किस्में निकलती हैं, तो मैं इन मोटी मोटी किस्मों की आपको तारीफ बताता हूँ। बिदअत हसना वो बिदअत है जो कुरान और हदीस के उसूल व कवाइद के मुताबिक हो और उसे उन्हीं पर कयास किया गया हो। इसकी 2 किस्में हैं, बिदअत वाजिबा, बिदअत मुस्तहिब्बा। और दूसरी जो थी बिदअत सय्यिआ। बिदअत सय्यिआ वो बिदअत है जो कुरान और हदीस के उसूल व ज़वाबित के मुखालिफ हो। अशियातुल लमात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 125। इसकी भी 2 किस्में हैं, एक बिदअत मुहर्रमा है और दूसरी बिदअत मुबाहा है। और तीसरी किस्म जो है वो बिदअत मुबाहा है।
बिदअत मुबाहा किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है जो चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में ना हो और जिसके करने ना करने पर सवाब व अज़ाब भी ना हो, उसे बिदअत मुबाहा कहते हैं। इसका हवाला अशियातुल लम्हात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 125। इस तरह से बिदअत की किस्मों की किस्में निकल रही हैं। मैं आपको खुलासा बताता हूँ बिदअत का। जो काम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में ना हो और अब बाद में वो काम ईजाद हो, अगर वो काम कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है तो गलत है, कुरान और हदीस के मुवाफिक है तो सही है। कुरान और हदीस के वो काम जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ भी ना हो और कुरान और हदीस में उसका हुक्म भी ना हो तो वो भी सही है, और जो काम कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो या हमारी अक्ल के ख़िलाफ़ हो वो तब गलत है, उनको छोड़ देना चाहिए। लिहाजा वीडियो का खुलासा ये हुआ कि आला हज़रत को बिदाती कहना, रईसुल मुब्तदईन कहना, ये सरासर हसद की बुनियाद पर है, ऐसा कुछ नहीं है। आला हज़रत आशिक रसूल हैं और आपने पूरी ज़िंदगी इश्क़ रसूल में काटी है, जैसा कि आपके नातिया कलाम में है और मौलाना कौसर नियाज़ी ने जैसा लिखा है। हालांकि मौलाना कौसर नियाज़ी साहब के लिखने से आप आशिक रसूल नहीं हुए हैं, आशिक रसूल आप पहले से हैं, लेकिन हक बात वो होती है, सच्चा इंसान वो होता है जिसकी मुखालिफिन भी तारीफ़ करें। मैंने अपनी तहकीक आपकी खिदमत में पेश कर दी, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। मेरे कहने में जो भी गलती हो आप गवाह हो, आप मुझे माफ़ फरमाओ, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।